My lovely students, welcome to Mathological. This is the 31st session of our CAT DILR100 series. In this series, we are doing total 100 DILR sets for CAT examination. Start करते हैं. Another beautiful set, another beautiful session. And if you have not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. And this is the set for today, followed by 6 questions. So pause the video and try to solve the set yourself first, then only watch the solution. So to read the case at first, Komal appeared for a comprehensive test of 6 subjects on a particular day. She got 1 mark each for a correct answer, while 1/3 mark was deducted for an incorrect answer, and for every unattempted question, 1/6 marks were deducted. Table below shows partial data about her attempts. So in this table, we've been given data about number of questions for every subject, number of attempted questions, correct ones and incorrect ones. बहुत कम डेटा गिवन है, बट फिर वी हैव एडिशन इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं. सो क्वेश्चंस आर, हाउ मेनी मार्क्स हैज कुमल स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज कुमल लेफ्ट अनअटेम्प्टेड इन फिजिक्स. सारे के सारे क्वेश्चंस में हमारे पास जहां ऑप्शंस है, ऑप्शंस डेफिनेट है, अदरवाइज थीटा क्वेश्चन है. सो डेफिनेटली देयर विल बी ओनली वन केस, मल्टीपल सिनेरियोज नहीं बनने वाले यहाँ पे, और डायरेक्टली एक ही हमारा केस बनेगा. ओके, सो क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि 30 क्वेश्चंस आर देयर इन मैथमेटिक्स, 40 in physics, 45 in chemistry, 50 in biology, and 25 and 35 in English and history. Then 26 questions are attempted in mathematics, while 26 marks are total in biology. She attempted total 175 questions in the test. Total questions कितने हैं? 30, 40, 70, plus 45, 115, 165, 190, 225. So total questions are 225, but only 175 Kumar attempted. So attempted questions are 175, and which implies that 50 questions he must have skipped. ठीक है, स्किप्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट के बाद ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं. Skipped or not attempted, so those are equal to 50. So that much we already know. 175 questions she has attempted and total marks are 132. Okay, so for every correct question she is getting +1. For every incorrect question or wrong question she is getting -1/3, and for every unattempted or skipped question she is getting -1/6. That is the scoring. So total questions कितने हैं? 225. So we know that correct questions for there are C questions that she attempted overall in the comprehensive test, W questions she attempted incorrect, and S questions she skipped. So C plus W plus S, that is equal to 225, while S is equal to 50. So C plus W is 175 basically. And as for the second information, total score 132 है, and that will be C, 1 into C because of marks, because of correct questions, minus W/3 are marks for wrong questions, or minus skipped by 6, or basically 50/6 because skipped questions are 50. So minus 50/6, that will be her total score, which is equal to 132. So this is our first equation, and this will be second equation. Okay, now if we subtract second equation from the first equation, तो C वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से रॉन्ग क्वेश्चन भी पता लग जाएंगे. So minus plus plus minus, so this will C minus C cancel out, and then W plus W/3 will be 4 times W/3 plus 50/6, or 25/3 basically. That is equal to 175 minus 132, which is equal to 43. So 4W/3 becomes equal to 43 minus 25/3, and 43 into 3 is 129 minus 25, so 104/3. 4W/3 is 104/3, तो W यहाँ से आया था. Wrong questions are equal to 26. So basically she attempted 26 questions incorrect. Okay, 26 incorrect, 132 टोटल स्कोर आ रहा है, और यहाँ से करेक्ट की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज 175 टोटल अटेम्प्ट किए हैं, 26 आर इनकरेक्ट. सो 175 minus 25 यानी 149 शी हैज अटेम्प्टेड करेक्ट. ओके, अब फ्रेश पेज पे चलते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर लेते हैं. 295 आर टोटल क्वेश्चंस, 175 शी अटेम्प्टेड, 50 शी स्किप्ड, 149 she attempted correctly, 26 she attempted incorrectly, and overall 132 is the total score. Now second information, her number of incorrect attempts in mathematics is same as that of biology. So in mathematics and biology, her incorrect questions are equal. Then her number of incorrect attempts in physics is half that of incorrect in chemistry. So incorrect in chemistry is 6,
so that in physics must be equal to 3. And additionally, her score in mathematics and history are equal. So in mathematics and history, her score is equal. And lastly, number of unattempted questions in chemistry, English, and history were equal. Unattempted in chemistry, English, and history are equal. तो ये इन्फॉर्मेशन तो लास्ट में यूज हो पाएगा, पहले बाकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. सो फॉर मैथमेटिक्स वी नो आइडिया बिकॉज अटेम्प्टेड क्वेश्चंस तो पता है बट बाकी इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है. बट फॉर बायोलॉजी वी हैव सम बेसिक आइडिया दैट 50 क्वेश्चंस आर टोटल, 26 मार्क्स शी हैज स्कोर्ड. तो अगेन जैसे हमने टोटल ओवरऑल में किया वैसे ही सेम ट्राई करते हैं इन बायोलॉजी. सो सॉल्व करते हैं, अगेन इक्वेशन बनाते हैं. तो टोटल क्वेश्चंस आर 50, तो करेक्ट प्लस रॉन्ग प्लस स्किप टोटल इज 50 and score is 26. So correct minus w by 3 minus s by 6. This is equal to 26. Now let us multiply the second equation by 6. तो इक्वेशन हमारा सेकंड बन जाता है. पहला इक्वेशन तो आ गया c plus w plus s that is 50. सेकंड इक्वेशन आ जाएगा हमारा 6 times c minus 2w minus s and that is equal to 156. 156. Now add कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को. इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस, बिकॉज ऐड करने से एस हमारा रिमूव हो जाएगा और उसके बाद में दो अननोन्स पे इक्वेशन होगा तो वहाँ पे मे बी मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे बट हम फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन का. तो 6c plus c दैट इज 7c माइनस w दैट इज इक्वल टू 206. ये हमारा इक्वेशन आ गया. 7c माइनस w इज 206. अब डेफिनेटली नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, w का वैल्यू पॉजिटिव होगा. ठीक है, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा डेफिनेटली. तो इवन इफ वी पुट w इक्वल टू 0 तब 7c इक्वल टू 206 आ जाता है. बट 206 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. तो डेफिनेटली हमें 7 का मल्टीपल चाहिए जो कि 206 से लार्जर है. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसा वैल्यू क्या मिलेगा 210. So c can be equal to 30. If c is equal to 30, 7 to 30 will be 210. 210 minus 4 is equal to 206 यानी कि w will be equal to 4. So if there are 30 correct questions, then wrong questions are equal to 4. And in that case, skip questions कितने हो जाएंगे हमारे? 30 plus 4, 34 हो गया. Total questions 50 थे. तो 16 are skip questions. ये पहला सॉल्यूशन आ गया. अब अगर हम एक करेक्ट क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे, पैटर्न देखो हमेशा यहाँ पे, एक करेक्ट क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिवली हमें क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में. If you are increasing one correct question, so we will also have to increase 7 wrong questions, isn't it so? So 30 से 31 पे पहुंच गए. अदरवाइज कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है 1 का माइनस 1 का. सो 1 तुम इंक्रीज करते हो तो हमें 7 से बढ़ाना पड़ेगा 4 को. तो 4 प्लस 7 इज 11. 30 प्लस 1 31. तो 31 and 11 आ गया. 270 माइनस 7 206 आ गया. ठीक है. सो 31 क्वेश्चंस आर करेक्ट, 11 आर इनकरेक्ट. इन दैट केस कितने क्वेश्चंस आ गए हमारे अटेम्प्ट किए? 31 प्लस 11 42 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड. बच गए 8. तो 8 मस्ट बी स्किप्ड. ओके, 16 से पहुंचे 8 पे. थर्ड सॉल्यूशन आ सकता है 32. पैटर्न देखो, 1 इंक्रीज किया, यहाँ पे 7 इंक्रीज करोगे सो 11 से आ जाएंगे 18 पे और 0. तो दीज आर 3 पॉसिबल सिनेरियोस. बट लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर 26 ओनली. 26 ओनली. और 3 और 6 हमें 9 ऑलरेडी मिल चुका है. सो अगर वैल्यू यहाँ पे हमने x माना, दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी x, क्योंकि बायोलॉजी के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं. तो 2x प्लस 9, बेसिकली 2x प्लस 9, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 26. यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 17, यानी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 8.5. और बेसिकली क्योंकि इंटीजर ही होगा तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 8. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो हमें क्लियरली एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है जो हमारे काम का है, बाकी सारे सॉल्यूशंस तो हमारे काम के नहीं है. यानी कि डेफिनेटली जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिला हमें, व्हेन रॉन्ग क्वेश्चंस आर इक्वल टू 4, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दैट सैटिस्फाइज आवर कंडीशन. तो करेक्ट क्वेश्चंस मस्ट बी इक्वल टू 30 इन बायोलॉजी. 30 आर करेक्ट and 4 are incorrect. So 4 are incorrect in mathematics also. And 30 plus 4, 34 are attempted questions. Total out of 50, यानी कि 16 are skipped questions. 16 questions Komal has not attempted in biology. Okay, that is our first part. और यहाँ से हमें मैथमेटिक्स के लिए इन्फॉर्मेशन मिल गया. 26 आर अटेम्प्टेड, 4 आर इनकरेक्ट, 22 मस्ट बी करेक्ट. मार्क्स क्या आ जाएंगे? 4 आर नॉट अटेम्प्टेड. तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स विल बी 22 minus 4 by 3 because of incorrect questions and minus 4 by 6 because of skipped questions. So 22 minus 4 by 3 minus 2 by 3, 22 minus 2, score will be 20 marks in mathematics. और जो स्कोर मैथमेटिक्स में सेम इज इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी 20 मार्क्स स्कोर हो जाएगा. क्लियर है?
ठीक है, 20 मार्क्स हिस्ट्री का भी स्कोर हो गया। अब हिस्ट्री में भी फाइंड आउट करते हैं हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या आएंगे। सेम लॉजिक है। अदरवाइज देखो नंबर क्रंचिंग अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो वैसे ही ऑब्जर्व कर लो कि 20 हमारा करेक्ट स्कोर आ रहा है, नेट स्कोर आ रहा है, तो करेक्ट क्वेश्चन क्या होंगे, 22 या 23 होंगे। ठीक है, बहुत लार्ज वैल्यू तो होगा नहीं। अगर हम 24 25 ले लेते हैं तो 35 टोटल क्वेश्चन है, 24 ले लिया तो मैक्सिमम 11 इनकरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 11 तो वहां पे 20 हम बना नहीं पाएंगे, तो 23 करेक्ट पॉसिबिलिटी बन सकता है। 23 हमने बना लिया यहाँ पे। अब अगर 23 हमने करेक्ट किए हैं तो इन दैट केस 12 आर रिमेनिंग, 12 रिमेनिंग बचे हैं। और 12 को ब्रेक करो तो 12 का क्या केस बन सकता है हमारा, 6 इनकरेक्ट एंड 6 स्किप, तो वहां पे स्कोर हमारा 20 बन जाएगा। तो दिस मस्ट बी द केस। ठीक है, अगर नंबर क्रंचिंग आता है अदरवाइज तब तो ऐसे कर लोगे, अदरवाइज फिर इक्वेशन बनाओगे हिस्ट्री में भी। टोटल आर 35, तो करेक्ट प्लस रॉन्ग प्लस स्किप दैट इज इक्वल टू 35, एंड देन करेक्ट minus w by 3 minus s by 6, this is equal to 20. Multiply this by 6, so 6c minus 2w minus s, this is equal to 120. मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो 6c plus c 7c माइनस w हो जाता है 155, एंड 7 का मल्टीपल 154 तो आ रहा है बट वो छोटा है, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 161, 161 दैट इज इक्वल टू व्हेन c इज इक्वल 23, तो c 23 हमारा आ गया और वैल्यू आया हमारा 161, तो w विल बी इक्वल टू 6। अब यही एक पॉसिबल सिनेरियो मिलेगा 23 एंड 6, और इसके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे हमारे 6। तो वही है, सेम हमने कहानी की ही थी। 29 अटेम्प्टेड, और इससे जो अगला सॉल्यूशन मिलेगा वो डेफिनेटली हमारा लार्जर वैल्यू को 23 24 पे जाओगे, 6 को करना पड़ेगा 13, 24 13 हमारा प्लस, यही दोनों मिला के हमारा 35 से ओवरशूट करेगा, तो दैट इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। दिस इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का भी मामला हमारा फिट हो गया। अब बच गए हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे इनकरेक्ट 26, बचे कितने हैं 6 + 4 10, 10 + 10 20 23, तो 3 मोर इनकरेक्ट क्वेश्चंस इन इंग्लिश। सो इंग्लिश में 16 आर करेक्ट, 3 इनकरेक्ट, 19 total attempted, out of 25 6 are skipped. And then question is saying unattempted questions in chemistry, English and history are equal. तो इंग्लिश एंड हिस्ट्री में 6 and 6 है, केमिस्ट्री में भी दिस इज इक्वल टू 6। So out of 45 39 are attempted, out of which 6 are incorrect, 39 minus 6 that is equal to 33। तो स्कोर क्या आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में स्कोर विल बी 33 माइनस 6 इनकरेक्ट पे हो जाएगा -2, और रिमेनिंग 6 अनअटेम्प्टेड पे हो जाएगा -1, तो 33 minus 3 that is equal to 30। स्कोर इन इंग्लिश क्या होगा, 16 करेक्ट -3 इनकरेक्ट पे -1, और 6 स्किप पे -1, तो दैट विल बी 14। अब स्कोर बच गया हमारा 26 14 40 60 90 110, so 22 must be the score in physics। 3 are incorrect, 22 हमारे टोटल स्कोर आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगेन नंबर क्रंचिंग इजीली कर सकते हो, क्योंकि 3 हमारे इनकरेक्ट आ रहे हैं, यानी कि इनकरेक्ट की वजह से -1 हो रहा है 23, और बचेंगे कितना हमारा 23 हो रहा है, और बाकी हमारे कितना क्वेश्चन यहाँ पे स्किप होगा, तो ऐसे भी दिख ही रहा है यहाँ पे अटेम्प्ट स्किप वाले क्वेश्चन 6 + 4 10 26 32 38, तो 12 बार स्किप डायरेक्टली दिख रहा है, तो 12 स्किप हो गए, 28 अटेम्प्ट हो गए, 3 इनकरेक्ट हो गए, तो 25 मस्ट बी द करेक्ट वंस, 25 3 एंड 5, दिस विल बी सिनेरियो। तो सारा के सारा टेबल हमारा फिलअप हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, क्या ये बात क्लियर? ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स हैज कोमल स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, तो आंसर इज इक्वल 20, 20 is the score in mathematics. Second question, how many questions has Komal left unattempted in physics? The answer is 12 questions are unattempted in physics. Third question, what is the ratio of total marks lost due to incorrect answers to total marks lost due to unattempted questions? Incorrect answers कितने? Total 26. So 26 by 3 will be marks lost because of incorrect answers. And unattempted questions are 50, but marks lost will be 50 by 6. तो रेशियो हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6, सो रेशियो आ जाएगा 26 into 2, यानी 52:50, which will be 26:25. The ratio of marks lost will be 26:25, which is options. Question number 4, in which subject Komal has attempted questions with highest accuracy? So attempt with highest accuracy. Okay, chemistry, physics, biology and mathematics. So in chemistry, she has attempted 39 questions, out of which 33 are correct. So 33 by 39 for chemistry. For physics, this value is 25 में से 20 कितने 28 में से 25 are correct. So 25 by 28 in physics. In biology, that value is 30 by 34.
and in mathematics the value is 22/26. Okay, so in the option C and option D, in both cases न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस कितना है 4 का है, तो जिस केस में हमारा डिनोमिनेटर हायर होगा दैट वैल्यू विल बी मच हायर, दैट वैल्यू विल बी मच हायर, तो परसेंटेज विल बी मच हायर फॉर बायोलॉजी, तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स इज नॉट द हाईएस्ट एक्यूरेसी, नॉट हैविंग हाईएस्ट एक्यूरेसी. ओके, सो इट कुड बी, अब केमिस्ट्री के केस में देखो हमारा 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 33/39 एंड 30/34. या फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस विल बी 11/13 एंड दिस विल बी 15/17. ओके, और फिजिक्स का वैल्यू 25/28. तो कंपेयर करने के लिए वैसे भी देख सकते हो कि 11/13 आ रहा है, 15/17 आ रहा है, अगेन डिफरेंस आ रहा है 2 का, बट इन द सेकंड सिनेरियो डिनोमिनेटर इज मच हायर, so this percentage will be higher, so 30/34 is higher than 33/39. ठीक है, सो अब बच गई लड़ाई हमारी बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी. तो फिजिक्स इज 25/28 एंड बायोलॉजी इज 15/17. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 इंटू 17 और 28 इंटू 15. सिंप्लीफाई कर लो, so this will be 5, this will be 3, 5 into 17 will be 85, 28 into 3 is 84, 85 is larger than 84, so 25 or 28 will be larger than 15/17, यानी कि physics is having the highest accuracy. Option B will be the answer in this case. Okay, now next question. If Komal had decided to attempt all the 6 unattempted questions in chemistry and got them right with 50% accuracy, so what will be her updated score in chemistry? So already score क्या है chemistry में? Her score already is 30 in chemistry. 30 score है already, and 6 questions are skipped. The question is saying she is going to attempt these 6 questions as well. Out of these 6 questions, 3 will be correct and 3 will be wrong. So what will be her updated score? Okay, तो या तो स्कोर ऐसे निकाल लो कि नाउ देयर विल बी टोटल 30 स्कोर ऑलरेडी आ रहा था. ठीक है, सो पहले का हमारा सिनेरियो देख लो, पहले क्या था हमारा 33 वर करेक्ट इन केमिस्ट्री एंड 6 वर इनकरेक्ट. तो या तो ऐसे समझ लो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने का स्कोप है, तो 33 वर करेक्ट इनिशियली एंड 6 वर इनकरेक्ट. So now after these 6 attempted questions, क्योंकि अब skipped questions या unattempted questions तो 0 हो गए. So in the new scenario, we have total 33 plus 3, 36 questions are correct and 6 plus 3, 9 questions are incorrect. तो अब score क्या आ जाएगा 36 minus 9/3. So score will be 33. This is one way to look at it. Second way क्या हो सकता है कि हमें क्योंकि skipped questions पर भी नेगेटिव मार्किंग हो रहा था, तो जैसे ही तुम 6 skipped questions को अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज अटेम्प्ट करने हैं अब ये क्वेश्चंस, तो अटेम्प्ट करते ही जो इनका नेगेटिव मार्किंग था वो रिमूव करना पड़ेगा. तो 30 वाज द स्कोर ऑलरेडी, बट नाउ 6 क्वेश्चंस का जो स्किप्ड वाला -6/6 हुआ था, दैट -6/6 को ऐड करना पड़ेगा. सो स्किप्ड का 6/6 तुम ऐड करोगे, बिकॉज अब तो स्किप नहीं हो रहा, अब तो अटेम्प्ट कर रहे हो इनको. ठीक है, इसके बाद में कहानी देखोगे कि +3 बिकॉज ऑफ द करेक्ट क्वेश्चन, तो +3 into 1 और -3/3 बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन. तो स्कोर क्या आ जाएगा हमारा 30 + 1 31. So +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 + 3 स्कोर विल बी 33. आंसर आ जाएगा फॉर फिफ्थ क्वेश्चन, 33 विल बी टोटल स्कोर. इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ अगर ये लॉजिक समझ में आता है तो क्वेश्चन 6 अब इजीली हो जाएगा. क्वेश्चन 6 इज सेइंग इफ कोमल हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट 30 more questions in the test, what should be the minimum number of additional questions that she must attempt correctly to obtain a score of 150 or above overall? ओके, तो 30 more questions she is going to attempt. तो ऑलरेडी कितना अटेम्प्ट किया था 175 किया था और स्कोर आ रहा था 132. स्कोर वाज 132, बट नाउ शी इज ऑल्सो गोइंग टू अटेम्प्ट 30 more questions. तो ये क्वेश्चंस भी हमारे स्किप से बाहर हो जाएंगे. 30 more अटेम्प्ट करेंगे एंड देन स्कोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 30 अटेम्प्ट करने वाली है, इनका जो स्किप्ड वाला पार्ट था, नेगेटिव मार्किंग था, उसको ऐड करोगे तो 175 सॉरी 132 स्कोर था, तो 132 प्लस 30/6 हो जाएगा, बिकॉज नाउ दीज आर नॉट स्किप. तो स्किप्ड वाला पार्ट जो था वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग था उसको ऐड किया पहले, सबसे पहले हमने, तो ये स्कोर तो वैसे ही होगा अटेम्प्ट करते ही. अब ये चाहे सही हो गलत हो, बट इतना स्कोर तो जो नेगेटिव हो रहा था वो नेगेटिव अब नहीं होगा. तो स्कोर क्या हो गया हमारा, दिस इज 135 नाउ. 15 और एडिशनली ऐड करना है, 15 और ऐड करना है कि नहीं. अब 15 कितने से ऐड होगा,
करेक्ट प्लस इनकरेक्ट होगा, तो करेक्ट पे 1 मल्टीप्लाई होगा और माइनस W/3. तो 135 प्लस C minus W/3, this will be greater than equal to 150. और बेसिकली C minus W/3 has to be greater than equal to 15. While C plus W, this is equal to 30. तो यहाँ से W का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, W का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, W आ जाएगा हमारा इक्वल टू 30 माइनस C. तो C माइनस 30 माइनस C by 3 will be greater than equal to 15. So 3C minus 30 plus C, so that will be 4C minus 30 upon 3. This is greater than equal to 15. So 4C minus 30 is greater than equal to 45. एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे. C plus W is equal to 30. हाँ ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट तो 30 होगा. और C minus W by 3 that will be greater than equal to 15. ये भी सही है. और W हो गया हमारा 30 minus C, that is also correct. So 3C minus 30 plus C, यानी कि 4C minus 30 by 3 is greater than equal to 4. ठीक है, सही तो किया है, कोई गलती नहीं किया, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रहा था. ठीक है, सब कुछ सही है. 4C is greater than equal to 75. तो यहाँ से हमारा C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C should be greater than equal to 75 by 4. तो C should be greater than equal to 75 by 4 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 18.75. ठीक है, 18.75. So number of correct questions should be greater than equal to 18.75. ओहो हो. कैलकुलेशन में कितना बड़ी गलती किया है, ब्लंडर किया है यहाँ पे. 132 में 5 ऐड किया हमने और क्या लिख दिया यहाँ पे, भाई दिस इज 5, तो 137 हो जाएगा ना. वही लग रहा था कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है. सो 137 हो जाएगा, सो दिस वैल्यू विल बी 13. ये वैल्यू 13 आएगा. तो 4 विल बी ग्रेटर इक्वल टू 13 into 3, 39 plus 30, 69. So C will be greater equal to 69 by 4. यानी कि C will be greater equal to 17.25. तो minimum value, since the number of correct questions will be definitely integer, minimum value of such questions should be equal to 18. So she must attempt at least 18 questions correct out of the 30 questions she is going to attempt. The answer will be 18 in this case. Okay. आंसर हमारा 18 हो जाएगा. क्या क्लियर? ठीक है. सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब यही सेम चीज अगर इजीली भी कर सकते थे, यहाँ पे समझ गए 137 हो रहा है, 13 और एडिशनल चाहिए. ठीक है, सो 30 में से देख लो कितने करेक्ट करोगे तो 13 पे पहुंचोगे. फॉर एग्जाम्पल कोई एक रैंडम नंबर ले लिया, मैं 20 ले लिया, लेटर से 20 करेक्ट किया, हालांकि मिनिमम चाहिए हमको. 20 करेक्ट करोगे तो 20 प्लस 20 माइनस 10 बाई 3, डेफिनेटली 13 से ज्यादा हो रहा है. 15 पे गए हम, 15 प्लस 15 माइनस 15 बाई 3, तो दैट वुड बी इक्वल टू 10 ओनली. 16 करोगे तो पहुंचोगे वहां पे. तो ऐसे नंबर रेंजिंग से भी जा सकते हो. ठीक है, 16 पे 14 करेक्ट हो जाएंगे, प्लस 16 माइनस 14 बाई 3, दैट वुड बी स्टिल लेस देन 13, प्लस 17 माइनस 13 बाई 3, स्टिल लेस देन 13, क्योंकि 4 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 17 में से, तो 13 से छोटा ही आएगा. तो डेफिनेटली हमें 18 चाहिए होगा, क्योंकि 18 पे हमारा वैल्यू इजीली बन रहा है. 18 माइनस 4 यानी कि 14 आ रहा है इसको. तो डेफिनेटली क्योंकि इंटीजर होगा ऑब्वियसली, तो 18 is the minimum number of questions that she must attempt correct out of the 30 questions that she is going to attempt. Answer will be 80 in this case. So that will be all about this set. और आई बिलीव कि सारे क्वेश्चन समझ में आए. कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी कहीं डाउट रहता है कमेंट जरूर मेंशन करना. सेशन कैसा लगा, मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.